Hello students, we are on the second part of our chapter, The Fun They Had, and it is written by Isaac Asimov. In the last video, we left our chapter on point 7. Here Margie and Tommy, they are conversating about how a human teacher can teach students, because they were taught that in those times, in futuristic time, each and every student are having different teachers. Why? Because every kid is different, every kid is having different mental level, thinking level, understanding level, and in that world, teachers were graded according to the understanding level of the student. So it was indigestible for Margie to understand the thing that how a single human teacher can teach all the other children, like nearly 40 to 50 students in a single class. So she was like asking Tommy that how is it possible. So second thing, she's saying that she will not allow a person to be visiting her home to teach her. So here Tommy is telling her that nobody will visit your home, and in the past times there were different building for the students and teachers where students go and have their education, and teachers used to come there to teach the students. So I'm beginning my lecture from here. All Yeah, and all the kids learn the same thing, sure, if they were the same age. So यहाँ पर क्या बात हुई है कि एक अलग बिल्डिंग थी, वहाँ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जाते थे, टीचर्स पढ़ाते थे एंड बच्चे पढ़ते थे और सभी एक ही एज के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मार्जी के लिए ये अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी मदर ने उसे ये समझाया था कि हर एक बॉय और गर्ल के लिए एक अलग टीचर होना चाहिए, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है. लाइक जैसे आपका और आपके फ्रेंड का अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली डिफरेंट होगा. मे बी आप साइंस में अच्छे हैं, वो मैथ्स में अच्छा होगा. सो यहाँ आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल. तो उसकी मदर ने समझाया था कि मैकेनिकल टीचर्स हर एक स्टूडेंट के लिए अलग रहते हैं. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट द वे देन. तो यहाँ मार्जी पूछ रही है टॉमी से, क्या वो इस तरह से काम नहीं करते थे जिस तरह वो आज करते हैं. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. टॉमी क्या कह रहा है, अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं आ रही है तो तुम इसे मत पढ़ो. तो मार्गी क्या कहती है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था. I didn't say it, I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, it's probably time for Tommy too. मार्गी के लिए इंटरेस्टिंग था जानना कि स्कूल्स किस तरह के होते थे. अभी मार्गी ने बुक हाफ भी नहीं फिनिश की थी कि उसकी मदर ने उसे कॉल किया, उसे बोला कि चलो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया. एज मार्गी वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द स्कूल, तो उसने अपनी मदर को क्या कहा, नॉट येट, अभी नहीं. नॉट येट मीन्स अभी नहीं. बट उसकी मदर एडमेंट थी, उन्होंने कहा नहीं अभी चलो, और ये टाइम टॉमी के लिए भी है स्कूल जाने का. मार्गी सेड to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो मार्गी रिक्वेस्ट करती है टॉमी से कि क्या मैं तुम्हारे साथ ये बुक और पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद में. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड नॉनचैलेंटली, दिस मीन्स केयरलेसली. मे बी ही सेड केयरलेसली. ही वॉकड अवे whistling, the dusty old book tucked beneath his arms. तो केयरलेसली टॉमी ने मार्गी को रिप्लाई किया, हाँ ठीक है, मे बी कर लेना कभी किसी टाइम, अगर हमें टाइम मिला तो डेफिनेटली विल गो विद दैट. और उसने क्या किया, विसल करते हुए वो जो डस्टी बुक थी, डस्टी बुक मीन्स दैट रियल बुक, अपनी अंडर आर्म्स में रखी. अपने आर्म्स, बीनीथ मीन्स विद इन, अंडर द आई, अंडर, बीनीथ मीन्स अ थिंग विच इज़ अंडर सम सर्फेस. सो अपने आर्म्स में रखी और वहाँ से चल दिया. Margie went into schoolroom. It was right next to her bedroom, and mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learnt better if they learnt at a regular time. तो मार्गी का स्कूल कहाँ था, स्कूल रूम कहाँ था,
उसके बेडरूम के साथ में एक छोटा सा रूम था, वहाँ उसका मैकेनिकल टीचर था जो कि अपने टाइम पर ऑन हो जाता है एंड मार्गी के लिए वेट कर रहा था। और मार्गी की जो टाइमिंग थी वो मंडे टू फ्राइडे सेम थी, बट सैटरडे एंड संडे थोड़ी डिफरेंट थी। उसकी मदर ने कहा था कि गर्ल्स अच्छा लर्न करती हैं अगर वो टाइम पे लर्न करें तो। स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो मार्गी उस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाली थी? अरिथमेटिक लेसन का एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड मैकेनिकल टीचर ने उसे कहा कि अपना कल का होमवर्क जो अपनी होमवर्क स्लॉट है उसमें इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई। अंडरलाइन द वर्ड साई। साई मीन्स डीप ब्रेथ। मार्गी ने अपना होमवर्क इंसर्ट किया homework slot में with a deep breath. She was thinking about the old school that had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. So क्योंकि मार्गी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जानना कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एक अलग बिल्डिंग में जाते थे, एक सिंगल ह्यूमन टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा था ये सोचकर कि उस टाइम के जो स्कूल्स थे वो कितने अच्छे थे। सभी बच्चे इकट्ठे होकर स्कूल जाते थे, हंसते थे, खेलते थे, शाउट करते थे, इकट्ठे बैठते थे जिस तरह आप लोग करते हो, खाना खाते थे इकट्ठे, दे यूज टू शेयर थिंग्स। सो वो यही सोच रही थी कि उस टाइम पे कितना अच्छा होता होगा पढ़ना, होमवर्क कितना इजी होता होगा, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करता होगा। एंड द टीचर्स वो पीपल। The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fraction 1 by 2 and 1 by 4. Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So जब मैकेनिकल टीचर उसे फ्रैक्शन की एडिशन बता रहा था, मार्गी कहाँ थी? मार्गी अपने थॉट प्रोसेस में थी, सोच रही थी कि उस टाइम के बच्चे अपने स्कूल्स को कितना इंजॉय करते होंगे और कितने अच्छे से पढ़ते होंगे. So that's all for today's lecture.